Good morning, students. So today we are going to start our chapter new topic, that is methods of calculating national income. Okay, which topic we are going to study? National income. Methods of national income. Methods Good of morning, sir. calculating national income. Good morning. Where were you in accounts class? You was not here. सर मैं गया ही सर कितने ताइयां ज्वाइन नहीं कर पाया मैं Arey, सॉरी सर don't speak in your mother tongue. Okay. See, so beta, there are three methods of calculating national income. Anybody can tell me the name of all three methods of calculating national income? Sir, Anyone can tell income me? method, Total of value. value added method, expenditure method. Yes, number one, value added method, Yes, income sir. method, and expenditure Expenditure method. method. What is the another name of value added method? Yeah. वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम क्या है? Product method. प्रोडक्ट Product मेथड. method. वेरी गुड. So see bete, in the last chapter we have studied about circular flow of national income. Circular flow of income में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि national income can be calculated by the value addition. What is national income? National income is the sum of total value addition of all the incomes in an economy. Okay, and it is the total of overall expenditure on final goods and services in an economy, as well as it is the sum of income generated in the economy. ये चीज हो गई क्लियर सभी की कि नेशनल Yes, इनकम sir. क्या Yes, होती है? sir. So overall there are three methods to calculate between national income. ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं? Yes, sir. Three. Three methods. Yes. So first one we will discuss in this video, that is value added method. क्या है मेथड का नाम? Value added method. Value added method. What we have to do in value added method? Anybody can tell me? Value added method में क्या, how we can calculate value added? The value of output minus intermediate consumptions. Yes, very good. Value of output minus income intermediate consumption sir. Intermediate consumption. Yes, intermediate consumption. Okay, so value added measures national income in the terms of value addition by each producing unit. Means जो उतनी भी फर्म्स आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही हैं बेटा, ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं मार्केट में, उनके द्वारा जितना भी आउटपुट बनाया गया है, जितना भी क्या किया गया है, आउटपुट तैयार किया गया है, उन सभी को हम ऐड कर देंगे टोटल आउटपुट को, तो नेशनल इनकम आ जाएगी. ठीक है, अब किस तरह से आ जाएगी? सारा आउटपुट तैयार हुआ है जो बेटा, जितना भी प्रोडक्ट तैयार होगा उसका कुछ ना कुछ मार्केट रेट तो डिसाइड होगा ना, एंड ऑन दैट मार्केट रेट टैक्स विल बी चार्ज ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी. मतलब उसका जो प्राइस होगा उसी के बेस पे तो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी ना. सो Yes, sir. whatever final value of assets and liability will be there, on that basis in national income is calculated. So note down here, uh, first one, value added method, right? And while calculating the value added, estimation of contribution of all produced unit to production in domestic territory of the country, all the things, all the value of goods and services is equals to market value. ठीक है, हर प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बेस्ड होगी? मार्केट वैल्यू पे. दैट इज वाई यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड Market. फर्म्स गेट जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस. फर्म्स को जो जीडीपी है वो किस पे मिलेगा बेटे? मार्केट प्राइस पे मिलेगा. किस पे मिलेगा? Market price. Market price पे. As already we have discussed in chapter 2 about the concept of market price and factor cost. हम लोगों ने डिस्कस किया था ना. Yes, sir. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? What we have to do to move from market price to factor cost? Sir. NFIA. हाँ, we have to subtract net indirect taxes, not NFIA बेटा. NFIA net factor income from abroad is used to convert domestic into
क्रॉस नेशनल, national. यस, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए वो काम करता है, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपरली, यस सर Yes, sir. Sir. कर्सर इज मूविंग, हाइलाइटर मूव कर रहा है। अब देखिए यस Yes, सर sir. बेटा वैल्यू एडेड क्या होता है, साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। व्हाट इज वैल्यू एडेड बच्चे? वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन इंटरप्राइज एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। मींस कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स का आप सारा प्रोडक्शन का टोटल कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, उसका टोटल कर लीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या हो जाएगा वो? वैल्यू ऑफ आउटपुट्स अब उसको माल को तैयार करने में माल पे लागत भी तो लगी है ना, जो भी, देयर विल बी सम चार्ज, एक्सपेंसेस भी तो चार्ज हुई होंगी ना उसके ऊपर, कंजप्शन कुछ तो लगा होगा, आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, आपने लेबर को पेमेंट करी होगी, a lot of expenses are there, so we have to subtract intermediate consumption from it। का माइनस करना पड़ेगा? what we have to Intermediate consumptions. Intermediate Yes, consumption. we have to subtract beta intermediate consumption। Consumptions. Clear? Consumption. Yes, sir. Why strength is decreasing day by day? Dilraj, I was trying your number, but your number was not reachable. Manpreet is not here. Sukhraj is not here. I will not allow marks in practical examination। ये सोच लीजिए, जितने नहीं आ रहे हैं इनको बता दीजिएगा। कौन सा नंबर लगा रहे थे सर? 9 whatever enrolled in your school। अरे वो बंद हो गया सर। हाँ, तो व्हाट्सएप में और वर्किंग व्हाट्सएप में नंबर, जो भी काम नंबर चल रहा है आपका, उसको करना, जरा डीएम कर देना मुझे। ओके बड़ी गर्मी है एकदम। तो वैल्यू एडेड इज क्लियर? वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बेटा बात समझ में आ गई है? यस सर Yes. Okay. sir. Yes, So, sir. नोट डाउन बेटा, इट फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इफ यू हैव डन ऑलरेडी तो डू इट अगेन बेटा। दिस चैप्टर गिव्स यू 6 to 8 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस चैप्टर, इसलिए फिर से कर रहे हैं। कर लिया सभी ने नोट? नोट डाउन वेरी फास्ट। Anybody can tell me what is the value of output? Value of output आप किसे बोलेंगे? अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले। हरप्रीत यू टेल। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट्स रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। हेलो सर, हेलो। Yes बेटा, value of Sir, output is equal to market value of market value of goods produced by firms during an accounting year। ठीक है, अगर Yes, sir. फर्म का सारा आउटपुट सेल हो जाता है पूरे साल में, ठीक है ना, मतलब पूरा जितना Yes, भी sir. आउटपुट तैयार किया गया है वो सारा का सारा सेल हो जाता है, राइट? सो इंटायर Yes. सेल्स विल बी कन्वर्टेड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर समथिंग इज लेफ्ट, कुछ रह जाता है बिकने से माल, तो आपको क्या करना होगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक आउटपुट इक्वल चेंज इन स्टॉक। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा? इस डेल्टा का मतलब क्या है? ये जो डेल्टा है इसका मीनिंग क्या है पता है? सर चेंज इन स्टॉक। यस, चेंज इन स्टॉक बेटे, राइट? सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस चेंज? व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन स्टॉक? देखिए बेटा, चेंज इन स्टॉक का मीनिंग क्या है कि व्हेनेवर बिजनेस स्टार्टेड इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन द बिगिनिंग द फर्म माइट हैव सम क्लोजिंग स्टॉक। कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना फर्म के पास में। At the end of the year, and whenever firm started at the beginning, firm have same will convert into opening stock. So calculate change in stock, we have to subtract opening stock from stock. Is it correct? Jagjit, mute yourself.
unmute whenever you want to ask any problem. Change in stock is clear to you all, beta? Students? Change in Yes, stock sir. is clear? Yes, sir. Now see what is intermediate consumption. Intermediate consumption क्या होता है? बताएगा कोई? What is intermediate consumption? Value of non-factor input. हाँ. It means all the inputs other than land, labor, capital and entrepreneurship. मतलब इंटरमीडिएट जो भी सिंपली आप कह सकते हो कि जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन के लिए, तो टोटल वॉट एवर रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन दैट कम्स अंडर इंटरमीडिएट कंजप्शन. ठीक है, क्या बोल सकते हो उसे? इंटरमीडिएट कंजप्शन. इज इट क्लियर? सर समझ नहीं आया इंटरमीडिएट कंजप्शन. आपने चाय बनाने के लिए बेचनी है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ. इफ यू वांट टू सेल अ टी, यू हैव परचेस्ड मिल्क फॉर दैट, यू हैव परचेस्ड शुगर फॉर दैट, यू हैव परचेस्ड टी फॉर दैट, जो भी लगता है ठीक है. उसमें. हाँ. तो जो माल आएगा बेटे वो सारा क्या हो जाएगा आपका? इंटरमीडिएट कंजप्शन. ठीक है. नाउ सी हियर, फॉर एग्जांपल the table is showing here estimated value added or value addition for a producing enterprise. जैसे farmer है, ठीक है, who is farmer, second one is flour mill, third one is baker and fourth one is shopkeeper here बेटे. Okay, and output of each unit is 600 rupee of farmer, 800 of flour mill, baker 1000 and shopkeepers 1200. Okay, so the cost of intermediate consumption beta, cost of intermediate goods whatever they used for production was 200, 600, 800 and 1000, right? So how we have to calculate value added? How much value was added by farmer? कोई बता सकता है कि फार्मर के द्वारा कितनी वैल्यू एडेड की गई? The value 200. value of output minus intermediate consumptions. हाँ, तो 600 minus 200 Minus तो 4. it will Four. be 400. 400. The same way जैसे फ्लोर मिल है तो फ्लोर मिल वाला क्या करेगा बेटा? 800 की उसने वीट खरीदी and Minus 600. and sales floor for 800 का आउटपुट आया, ठीक है. खरीदी उसने 600 की थी, तो वैल्यू ऐड उसने कितने की कर दी? 200 की. नहीं 200 की. समझ रहे हो बात को? समझ गए. Yes कौन sir. है? ये सोते हुए कौन बोल रहा है समझ गए? किसने बोला अभी ये? बेटा मुंह धो लो जा करके. यशमन सर हम नहीं है. सी नेक्स्ट वन इज बेटे बेकर. थर्ड एग्जांपल क्या है? बेकर का. कोई इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर सकता है कि हाउ ही एडेड वैल्यूज, हाउ मच वैल्यू ही हैड एडेड? बेकर का कोई बताएगा? यशमन यू एक्सप्लेन हाउ मच वैल्यू वाज एडेड बाय बेकर. सर 200. हाउ दिस 200 केम? सर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. Yes. So what was the value of intermediate consumption? सर 800. सर 800. 800. Raunak has not joined her audio. Why? Someone call her. उसको पता नहीं कैसे ज्वाइन करना है इसको. साहिबा, you explain the total output value added, कि ये टोटल कितना कैसे आया, इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे आया, एंड how this 1000 came. सब साहिबा you explain. She is not here. साहिबा, ऐश्वर्या, you explain बेटा.
how this total value added by all three units came, मतलब टोटल वैल्यू एडेड तीनों फर्म के यूनिट की किस तरह से निकाली गई है, कितना उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट था, कितना इंटरमीडिएट कंजप्शन था, एक्सप्लेन इट बेटा। ओके सर। हाँ टेल मी। सर ये तीनों यूनिट की वैल्यूज जो है सर वही फॉर्मूले से निकाली गई है। वैल्यू ऑफ स्पीक बिट लाउड बेटा, थोड़ा सा लाउडली बोलो। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इस फॉर्मूले से निकाली गई हैं सर। और ये वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्लोर मिल की दे रखी है 800 और कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट दे रखी है 600। तो हम सर इन दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके फिर इसको माइनस कर देंगे तो सर ऐसे ही 200 आ जाएगा। ऐसे ही सर बेकर की भी आएगी और ऐसे ही शॉपकीपर की भी आएगी। सो ओवरऑल क्या किया गया, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल थ्री, 600, 800, 1000, 1200 इक्वल टू 3600 ये आ गया था, है ना। दिस 3600 है ना। और उसके बाद में द टोटल इंटरमीडिएट कंजप्शन वाज 2600। सो 3600 माइनस, आ गया समझ में सभी को ये? यस सर। यस सर। माइनस 2600 कर देंगे। यस सर आ गया। Note down this example beta, note down this example on your notebook and see here 3600 minus 2600 कर दिया, so it will be 1000. okay, is it clear? Yes sir. So note down this beta. सर नोट डाउन कर लें? Yes beta, note down this. So overall you have got it ना कि how we have calculated this output 1000. तो ये जो total value added आई है 1000, what is it? ये क्या होगा? This will be GDP. ये क्या हो जाएगा आपका? GDP. Okay, so gross GDP. value added by all producing enterprises within domestic territory during an accounting year is called gross domestic GDP. product at market price. Okay, so GDP is equals to value added by all producing enterprises within domestic territory of a country during the period of 1 year. ठीक है, so market value of final goods and services produced in the economy during the period of 1 year. आगे बात समझ में, मतलब कि जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है बेटा, उन सब ने जो भी माल तैयार किया उनकी मार्केट वैल्यू पे आप उनको सबको ऐड कर दोगे, दैट विल बी जीडीपी एट मार्केट प्राइस. क्लियर? Yes sir. सर। Yes sir. Earlier 17 had joined and now only 13 left. Why? Rest are sleeping. मतलब ये बहुत सर दिलराज फोन करन दिया सी, वो कहंदा उधर नेटवर्क प्रॉब्लम मत आवाज नहीं नेटवर्क आउंदी। प्रॉब्लम तो क्लास ज्वाइन करने में हो जाती है, पबजी खेलने में नहीं होती किसी को भी। यहाँ मनप्रीत सिंह भी नहीं है। मैं इंटरनल मार्क्स डेफिनेटली नहीं, देखिए ये चीज क्लियर है, सब कुछ इस बार इंटरनल बेस्ड है, खुला बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो भी यूट्यूब पे जाएगी और जितने सुनेंगे वो भी सुन लो अच्छे से, ठीक है। जो क्लास स्किप कर रहे हैं रिकॉर्ड हम भी पूरा बना रहे हैं, लिस्ट देख देख के बनाएंगे कि किस बच्चे ने वीडियो क्लास में रिकॉर्ड लगातार करी थी, ठीक है। पूरी अटेंडेंस, अब तो पहले ये ना मत सोचना कि रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास हर एक असेसमेंट का रिकॉर्ड है डे 1 से लेकर के, इनको बता दीजिएगा अच्छे से। फिर बोलेंगे कि स्कूल में नंबर नहीं मिलते इंटरनल मार्क्स के। हम क्या करेंगे भाई, इतनी मेहनत से समझा रहे हैं, दूसरी बार मैंने बुक स्टार्ट कर दी है, उसके बाद भी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं ना। यहाँ सुखराज सिंह है, Mehak, Gurjinder, both of them are not here. Gurjinder is also not here. Yes sir. अच्छा, you are here. Okay. यार तुमने ये नाम कैसे डायमंड लगा रखे हैं? Write your name properly. जगजीत सिंह. You also write your. Where is Gurjeet? Gurjeet is not here.
Noted everyone? आनंद Is ठाकुर it clear? Students, clear हो गया सभी को ये? Yes, sir. Yes, Yes. Now see, if you want to move from GDP MP to net domestic product at market price, then what you will do? minus depreciation. क्या करेंगे बेटा? जीडीपी एमपी से इसमें जाना है एनडीपी में, ठीक है? Minus यहाँ से यहाँ आना है तो क्या माइनस होगा? Depreciation. will be subtracted बेटा. क्लियर? depreciation. आ गया समझ में? Yes. यस नेक्स्ट, अगर हमें अब ये मार्केट प्राइस पे, Yes. ठीक है? सर, यस बेटा. जीडीपी से जीडीपी में जाने के लिए डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस, और एमपी में से हमें जाना है किस पे? एमपी से किस पे जाना है? एफसी टू एफसी. देन व्हाट यू विल डू? FC. सब्ट्रैक्ट. एफसी Minus NIT. यस, माइनस एनआईटी. आ गया समझ में? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसी? फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट एफसी इक्वल FACTOR फैक्टर COST. क्लियर? ओके सर। एमपी इक्वल मार्केट प्राइस. और पूछो, कह दो एबीसीडी भी सर बता दीजिए कि एबीसीडी किसने लिखी थी, या एबीसीडी का मतलब क्या होता है, ये भी पूछ लो, वो भी बताता हूँ. बता. नो थैंक्स सर, सॉरी सर। कल आना, एक एबीसीडी वाली बुक ले आना, उसमें एलिफेंट की स्पेलिंग की तुम्हें पढ़ा देंगे क्या होती है, बनाना की भी बता देंगे. सर का नोट हो गया सभी का ये? Yes, sir. Now whatever the things I was explaining, see all the things by here chart. ठीक है? आप लोगों ने ग्रॉस वैल्यू एड, मतलब देखिए 3 सेक्टर्स होते हैं हमारी फर्म्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, राइट? सो तीनों से आप ऐड करोगे तो आपके पास जीडीपी आ जाएगा. देन व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट जीडीपी. GDP. ठीक है ना? एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू मूव फॉर एनडीपी, जब आपको एनडीपी पे जाना है, किधर जाना है? NDP. we will subtract depreciation, then we will get NDP at MP. अब NDP से हमें बेटा डोमेस्टिक, देखिए हमेशा ये याद रखना, जब भी डोमेस्टिक इनकम में लिखोगे या फिर नेशनल इनकम लिखोगे, राइट, तो यू आर यूजिंग वर्ड डोमेस्टिक, तो देन यू हैव टू राइट NDP FC, या क्वेश्चन में भी ये दिया गया है डोमेस्टिक इनकम, तो यू हैव टू एज्यूम इट NDP एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है? क्योंकि जब भी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम बनती है तो वो आपकी किसी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, तो व्हेनेवर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी देयर, तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी विल बी यूज्ड. ठीक है? तो उसको एक्सक्लूड करके ही वैल्यू हमारे पास निकलेगी, तो आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. क्लियर? और NFI जब हमारा बेटे ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल इनकम मिल जाएगा. क्लियर? यस सर, यस सर। Now see, what are the precautions that we have to take in? Precaution का मतलब समझते हो क्या? कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए जब हमने कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. ये चीज तो पता है ना कि कोई भी सेकंड हैंड चीज कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए कहीं पर भी. ठीक है? सबसे बड़ी प्रिकॉशन है. तो सेम चीज आपको वो यहाँ भी अप्लाई कर देनी कि व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो डू नॉट यूज सेकंड हैंड गुड. ठीक है? वो चाहे XYZ कैसा भी गुड हो. ठीक है? Because value of second hand goods is already accounted for during the year they were produced. ठीक है? उसका जो वैल्यू है ना, जो उसका यूज है वो पहले ही हो चुका है, राइट? Is it clear? यस सर। आनंद, Yes, sir. समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर. यशवंत, screen is visible to you? Yes, sir. Okay.
Now see, next second point is commission earned on account of sale and purchase of Commission earned. second hand goods is not is included in estimation of value added because commission is reward for the services render. अगर आपको कमीशन मिला है ना कहीं पे भी कोई भी काम बनाने में, ठीक है, गुड सेकंड हैंड गुड्स को बेचने या खरीदवाने में, तो उस कमीशन को भी आप अपनी वैल्यू एडेड में ऐड करेंगे। आई है बात समझ में? नो सर। नहीं आया समझ में। देखिए मान लो मोहम्मदी में या जहाँ पे भी आप लोग रह रहे हो वहां पे कोई एक जमीन सेल करानी है, ठीक है, मान लो दिलराज अपनी जमीन बेच रहे हैं। अब आनंद ने जमीन बिकवाने में 1 लाख रुपए कमीशन कह दिया कि भाई हमें 1 लाख रुपए कमीशन दे देना। सो दैट 1 लाख व्हाई ही इज गेटिंग, ही इज रेंडरिंग सर्विसेज, भाई वो बार बार एजेंट्स को मतलब कस्टमर्स को बुला करके ला रहा है कि ले लो भाई, ठीक है। देन उसके बाद में ही उसको उसने मेहनत करी, सर्विसेज रेंडर करी, उसके बाद में तो उसको पैसा मिलेगा ना। सो दैट इज व्हाई इट इज द रिवार्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, हेंस इट विल एडेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हरप्रीत, एनी प्रॉब्लम हियर? यस सर। नो सर, आ गया सर। नो सर। आनंद बेटा समझ में आ गया अब? हाँ हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, ये सारे प्रिकॉशंस हैं, यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, ओके? ओके सर। हाँ थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? On account of production of goods for the producing unit is taken into account while estimating value added. इस पॉइंट का मतलब क्लियर है सभी को? Anyone have doubt in this point? कि जो भी एसेट्स या कोई भी चीज आपने पर्सनल यूज के लिए यूज करी है, ठीक है ना, तो उसको भी आप नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज्ड अ कार या कार परचेस्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉइज, तो दिस विल आल्सो बी एडेड टू नेशनल इनकम, ओके? क्लियर? एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो भी आप प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू भी आपके आउटपुट में ऐड होगी। ये नहीं है कि आपने, जैसे फार्मर्स लोग ज्यादा हैं हमारे एरिया में, तो दे आर प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड दे आर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग बाय देमसेल्फ, अपने लिए भी वो व्हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ देयर इनकम। ये नहीं कि वो उनकी इनकम नहीं है, वो भी उनकी इनकम का पार्ट है, ठीक है। एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बेटा डू नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। वाई सर? इंटरमीडिएट बेटा जो चीज अभी बनी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे बाइक है, अगर बाइक के स्पेयर पार्ट लग के वो रेडी नहीं है तो वी कैन नॉट यूज इट ना, बिकॉज whenever raw material is added to someone else, then final value will added to that machinery, okay? So that is why all the final goods and services will marked in the calculating national income. क्या? Okay, 7 point. And 7th point is better services for self consumption. Sukhraj, explain this point. You have to explain this point. Services for self consumption are not considered while estimating value added. बताइए इसका मतलब। जो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, रेज योर हैंड कर सकता है। सुखराज इज नॉट इन मीटिंग आई थिंक। गुरजिंदर बेटा यू एक्सप्लेन। Yes, sir. Explain the 7th point. Services for consumption are Services for while estimating value added.
Simply because it is difficult to estimate their market value. जल्दी करिए जल्दी. Explain बेटा. Services for self-consumption are not considered while estimating value added. बेटा देखिए, जो भी सर्विसेज कोई भी बंदा अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं ना, तो टू एस्टिमेट देयर वैल्यू इट इज वेरी डिफिकल्ट. जैसे हाउसवाइफ्स हैं, हम लोगों की मदर्स हैं, घर पे काम करते हैं, खुद ही हम लोगों को खाना बना के देते हैं, तो वी कैन नॉट एस्टिमेट द वैल्यू. ठीक है, हम उसके चार्जेस को एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, दैट इज वाई जो सेल्फ कंजप्शन की सर्विसेज होती हैं उनको हम लोग वैल्यू एडेड में कंसिडर्ड नहीं करेंगे. ठीक है. Now what is the problem? Problem is between the differentiation of intermediate and final goods. तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि आप फाइनल गुड्स को ही यूज करोगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करोगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दो तरीके हैं, यूज फाइनल वैल्यू आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है, या तो आप फाइनल आउटपुट की वैल्यू को ही ऐड करके नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, आइदर यू कैन ऐड बाय कैलकुलेटिंग टोटल वैल्यू. वैल्यू एडेड का मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे फार्मर ने 1000 का वीट लिया था, 200 उसके ऊपर इंटरमीडिएट कंजप्शन था, टोटल 600 वैल्यू एडेड करी थी उसने, तो या तो आप 600 को ऐड करके आउटपुट निकाल लीजिए. ठीक है, आया समझ में? नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. ठीक है, एक क्वेश्चन को एग्जांपल को लगाते हैं. एग्जांपल इज हियर, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा सर्टेन द डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इंक्लूड टू फर्म्स. ठीक है, हमने दोनों फर्म्स की वैल्यू एडेड निकालनी है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, जीवीए का मतलब हो जाएगा जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी, तो ऑलरेडी क्लियर है ही है. ठीक है, अगर वैल्यू एडेड बोला गया है तो उसका मतलब ही आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. ठीक है, nobody is saying yes, nobody is saying no, all are sleeping. Why you are here in class? अगर सोना है घर पे सो जाओ, पंखा चला लो, बेवकूफ कहेंगे. Yes, sir. इन्वॉल्वमेंट आप नहीं देते Yes, sir. क्लास में, तो क्यों आए हो क्लास में? सी, सेल्स बाय फर्म ए इज 100, परचेसेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए इज 40, परचेसेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी इज 60. तो देखिए सेल्स ए की कितनी है? 100, और परचेसेस कितना है? 40. Yes, sir. भाई जो बेटा बाई फर्म ए लिखा है यही तो ए ने परचेस किया है, 40. तो वैल्यू एडेड निकालना है, तो व्हाट यू विल डू, 100 माइनस 40. आगे देखते हैं कुछ और भी है माइनस होने के लिए. आगे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग ए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी ना, तो जीडीपी यानी कि वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा देंगे, सेल्स बाय फर्म ए Closing stock. माइनस परचेसेस, और बेटा चेंज Yes, इन sir. स्टॉक, स्टॉक दोनों दिए हैं ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो वी विल एडेड बैक बोथ. Yes, sir. ठीक है, sir. क्लोजिंग को ऐड कर Yes, दोगे और ओपनिंग को माइनस कर दोगे, तो सेल्स बाय फर्म ए वाज 100 लाख, 40 लाख इज परचेसेस, Yes, sir. एंड चेंज इन स्टॉक इज 5 लाख. माइनस का आ रहा है तो माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल 55 लाख विल बी द नेट सॉरी ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. नोट डाउन दिस इमीडिएटली. Yes, sir. अब इसको अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स वर 30. ठीक है ना, 30 है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड बोथ द Yes, फर्म्स sir. हैव टू पे, तो 55 से हम 30 जब माइनस कर देंगे, हाउ मच यू विल गेट? 25. 25. कितना आ जाएगा? Sir, 25. 25. तो व्हाट विल बी 25? 25 क्या हो जाएगा? जगजीत यू टेल GDP. व्हाट विल बी 25? 25 किस चीज की वैल्यू है? अब सो गया ये गधा. साक्षी यू टेल व्हाट इज व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड दिस 55 माइनस 30 क्यों किया? हमें किस चीज की वैल्यू मिली है? शी इज आल्सो नॉट इन क्लास. सी द कंडीशन. सुखराज यू टेल. फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये बात होती है.
भैया जब नहीं आना क्लास में, नहीं दम है तो क्यों आ रहे हो? कोई उठाने थोड़ी जा रहा है। बिना मतलब में टाइम को अपना भी खराब कर रहे हो, गला हमारा जिखवा रहे हो। जिसने सोच ही लिया फेल होना है, क्या किया जा सकता है उसके लिए? सो नोट डाउन बेटा, इमीडिएटली नोट कर लीजिए। कितने लोगों ने नोट कर लिया ये? यस सर, कर लिया। ओके, सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। ऐश्वर्या नोट हो गया? सर नोट हो गया बेटा? हाँ सर। ये चीज क्लियर हो गई कैसे वैल्यू एडेड आ रही है? सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, मम्मी स्पीकर हो ना। पार्ट बी वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट पे जब जीडीपी निकालना है तो मार्केट का निकलेगा, तो दोनों में हम लोग दोनों को ऐड कर लेंगे पहली चीज तो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी आपको निकालनी है बेटा, तो उसमें तो जितनी भी फर्म्स होंगी वी हैव टू ऐड जीडीपी ऑफ ऑल द फर्म्स। जो भी वैल्यू एडेड सारी फर्म्स के द्वारा हुई है, तो एक के द्वारा 55 हुई थी, बी के द्वारा 130 हुई थी, हम दोनों को ऐड कर देंगे, 30 माइनस कर देंगे, तो 185 माइनस 30। देखिए अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा था ना, 25 किसका आ रहा था जीडीपी एफसी? ए का आ रहा था। ऐसे बी का कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, तो 120 प्लस 135 कितना आ जाएगा? 155 विल बी द टोटल वैल्यू एडेड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यस सर, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए एंड रेज योर हैंड्स हु हैव नोटेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट। आफ्टर दिस अगेन यू हैव टू ज्वाइन क्लास। ठीक है, आपको फिर से ज्वाइन करनी है क्योंकि टिल 12 o'clock यू हैव टू स्टे हियर इन क्लास। जिसका नोट हो गया है, देखिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम। इफ वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? कोई बताएगा? एक लोग बताइए जरा, अगर नेशनल इनकम बोला गया है तो हमें क्या निकालना है? जीडीपी। यशमन यस टेल, कोमल यू टेल, हरप्रीत यू टेल, गुरजिंदर यू टेल। GDP at market price. सर जीडीपी एंड मार्केट प्राइस। मैंने आपको अभी बोला था अगर वर्ड नेशनल इनकम कहीं पे भी लगा हुआ है तो नेशनल इनकम, नेशनल हरप्रीत यू टेल नेशनल इनकम। अरे यार तुक्का मत मारा करो। नेशनल इनकम इक्वल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इट इज NNP और बेस में आपका लग जाएगा FC। ठीक है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम जब बोला जाएगा तो दिमाग में बैठा लो भैया, जो ये खोपड़ी खाली हो गई इसको खोल लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यूज योर माइंड। अभी क्लास शुरू होने से पहले मैंने समझाई थी वो चीज, फिर नहीं समझ में आ रही? पता नहीं सो रहे हो क्या कर रहे हो? बी एक्टिव इन क्लास। व्हाट विल बी द जीवीए एट मार्केट प्राइस? जीवीए क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड तीनों फर्म्स का ये